The world wanted you to be stereotypical, but you definitely chose a path that's very stereotypical. Imagine Bhagat Singh had a social media account today. Like तभी guys, भगत hi सिंह guys, होते। making bombs at home. गांधी जी ने स्टूडेंट्स से देश भर में गुहार लगाई कि वो कॉलेज छोड़ के क्रांति का हिस्सा बन जाए। तब लाहौर के नेशनल कॉलेज की एक चाय की टपरी पर बैठे कुछ यारों ने एक बार भी नहीं सोचा और बन गए क्रांति का हिस्सा। कौन थे वो दोस्त? एक आदमी के भेस में दुर्गावती ने साजन टेलर और उनकी बीवी पर गोली चला दी। कैन यू इमेजिन? देश के काम ना आ सके जो, वो बेफजूल की जवानी थी। शुरू हुई तब गरम दल के नुमाइश आक्रोश की कहानी थी। इमेजिन निश्चय, आप अपने स्कूल में क्लास अटेंड कर रहे हो तो जो टीचर आपको मुर्गा बनाती है वो किसी वक्त बॉम्ब बनाती थी। She is someone you don't hear about a lot. Okay. I'm going to talk about Durga Bhabhi today. Welcome to Jan Gan Man. I am so excited. We are sitting across the table and doing this. I've known you for a few years now. Yeah. We've been acquaintances who are now slowly becoming friends, and it's very nascent stage. But it's so beautiful to be sitting across you today, and just to see the journey you've had over the last 3-4 years, especially. I mean, of course, it's been in the offing since a while now. But what we call mainstream more so. This over the last 3-4 years, it's been beautiful, and I'm always cheering for you. Thank you. It's so wonderful to be here. I've seen so many of my friends be a part of the show, and I was very excited when you said that you want me to be a part of it, and I was like, okay, I feel like होता है ना कि स्कूल के फेवरेट बच्चे कि सिर्फ इनको चांस मिलेगा यहाँ पे आने का टाइप. So I felt like that. Yeah. Just before I was coming, for me, the biggest happiness is when हमारे लिए कोई होता ना कि तुम building में घुसो and everybody's like, oh, she's come. Like how my father used to have that. When he used to enter, he was like, oh, he's come. And now when I was coming up, my driver overshot the entrance and we had to take reverse. So there were people and I was just telling them sorry and they looked at me and they were like, hey! No, auntie did that. Not lovely. like someone who would be online watching my show. No. Like an auntie and uncle looked at me and they gave me blessings. Feels so and warm, it feels so good, That's what we do it for. That's exactly, for the love. In fact, I was also thinking that the world wanted you to be stereotypical, but you definitely chose a path that's very stereotypical. You chose that for yourself and you believed in yourself and you've been on it. I know these two words define you. One is friendship, and the second is filmy. Right? Have I got it correct? You got it. Perfect. Why don't you tell me a bit about what these two words mean to you? I love how people are getting me now, because I am also more out there and being just myself and not worrying about what people are thinking about. So I go wherever love is. Yeah. So I love my friends and I find people who love having fun, who are open, who are good, who are just nice people. And what about filmy? That's my core. That is something that is like बचपन से सबका सपना होता है ना मैं तो हीरोइन बनूंगी. But I just love anything to do with films. कि like मेरे जो एक्टिंग कोच भी थे मैंने उनको बोला मुझे आपकी क्लास में चाय वाला बना दो ना मैं आती हूँ. I just want to sit there and be around. Be on set. So I think I'm in the right field. It's in your genes. It's in my genes. Yeah. Do you remember the first the early initiation with dad into cinema and? My first actual memory is खिलाड़ियों का खिलाड़ी. Whoa. Yeah. So the fake Undertaker. Don't call him fake Undertaker, yeah. Because Undertaker एक ही है निश्चय. Fine, okay. He was the real Undertaker, not the real Undertaker. Okay, yes. We can say that. Dude, he killed it. Maya, मुझसे पंगा. Come on. So one day dad said वो घर आ रहे हैं. And my mom was like, okay, मैं बना दूंगी चिकन मटन जो भी है. He's like, नहीं वो नहीं खा सकता. उसकी पूरी फैमिली आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, तो उनके लिए ऐसा कुछ फीका बनाऊं. लोग का stomach cannot take masala and all. So mom said, okay, and mom just cooked something up. You will not believe. I still eat that chicken and we call it Undertaker chicken. In fact, before I was coming, Mama was packing something for me to eat. I just ate on the way and she said, बेटा तूने बहुत टाइम से Undertaker chicken नहीं खाया, 2 हफ्ते हो गए. Every week I eat it. She's like 2 हफ्ते हो गए तू घर पे लंच ही नहीं कर रही है, तू बाहर भाग जाती है. Tomorrow I'm going to eat Undertaker chicken. This is such an 80s, 90s kids वाला story, no? Yeah. I remember my खिलाड़ियों का खिलाड़ी story. I was in school, मेरा birthday था and around that time this film had released. तो तभी तो स्कूल के बच्चों को around 45 of us I had taken for my birthday to watch खिलाड़ियों के खिलाड़ी at अपना जू वाला
चंदन चंदन कोर मेमोरी है ना आपके लिए. अंडरटेकर चिकन है मेरे लिए, इट्स वन ऑफ माय बेस्ट बर्थडेज कि हम उसके लिए गए थे. Again a special last few years for you. Amazing work of yours that I saw and I've raved about it to everybody that I've seen is Raaj Jawan hai. It was such a heartwarming nostalgia, old school in a new package. Yeah. Current people story, everything. I think It's a hug. It's a hug. But how do these accolades feel now that they're coming? Every day I wake up with one. I told Khyati very early on after Khyati is a Khyati is our writer. Yeah. She's a creator of the show. I told her very early on, like when you're 80 years old, we are in like a old age home in 80s, 90s में. I will wake up with a notification. Raj Jawan है, oh एक show किया था बेटा मैंने. And it's a gift that will keep on giving. Is what I always say to her. It's just so wonderful because this show deserves it. And I'm Absolutely so proud does. of it. We were talking about being filmy before this, and this is Jan Gan Man. We're talking about patriotism and India. Do you remember like one of the earliest patriotic Bollywood films you'd seen? I listen to Border ka album every day. I knew it was going to be Border before I asked the question. I knew it. Go on. I put up something today with Border's song. Shut in up. It. Yeah. It has the entire industry in it. Yeah. All the cool people from the Yeah. industry are in it. And Sunday से आते हैं जैसे ही he says मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, I'm finished. Khatam. I am never at home. My mom has that one शिकायत. She calls me आवारा. And I said, Mama, मैं बाहर जा रही हूँ कुछ करने. For you, for me, for this country, I'm going to make everybody proud. So when I listen to that part ना, I just go मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे. मैं घर पे रह के भी घर से दूर महसूस करती हूँ. Correct. Tell me, when you were growing up as a young girl, early days in school, how was Republic Day or Independence Day like? क्या करते थे उस दिन? सुबह सुबह फ्लैग होइस्टिंग में मतलब छुट्टी है फिर भी हम खड़े हैं और हम यॉन कर रहे हैं बट वी आर देयर वंस द म्यूजिक स्टार्ट्स मेरे देश की धरती प्ले होना शुरू हो जाएगा. Everything, all those patriotic songs. Yeah, and it's just fun. Did you perform at any of those? Always. Fancy dress? Did you dress up as someone? Do you I used to remember? always actually be army person. अच्छा. Yeah. Army uniform में. Army uniform. I remember I should dance on प्यार के गीत जरा सुन ले. I used to be because I was the tallest always, Correct, right? So I used to march past and all of that and take part in. You know, to be holding that flag like that and it used to be fun for me. Okay, so before we get into stories, like, and you're a filmy person, if I were to ask you today, Please, जरा की चल, story मैंने दिल चाहता है नहीं देखी है. मुझे दिल चाहता है की स्टोरी बता. पहले तकिए पे बैठना पड़ेगा. Correct, right? Anybody who's seen दिल चाहता है will get that reference, Yeah. right? अगर मैं सेम चीज बोलूंगा कि अच्छा मुझे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की स्टोरी सुना, तो हम क्यों सेम उसके साथ नहीं सुना पाते? Exactly. क्यों नहीं कर पाते? उसको क्यों सीरियस बनाना है और उसको क्यों एकदम ऐसे दर्दनाक कि सुन जरा ब्लैक एंड व्हाइट कर. हाँ, exactly. नहीं चाहिए ना. नहीं चाहिए. हम ऐसे ये फुल कलर में सुना सकते हैं. It's fine. That's how it should be. हम हैशटैग जय वीरू डालेंगे उसमें 100 लाइक आएंगे. 100 लाइक आएंगे. हैशटैग राम बिस्मिल डालेंगे किसी को समझ में नहीं आएगा किसकी बात कर रहे हैं Yeah, हम. बट ये हमें करना है. यही तो सॉफ्ट normalize पावर it. है. यही तो इंडिया, यही तो हमारी स्टोरीज है. और हमारे पास बहुत है. बहुत है. बहुत है. I think this is a great segue and I'm very keen to understand ki who have you selected? So this is the character that I've seen in a lot of movies. I've seen them underplay this character. It's like मुझे पता है इनके बारे में पर मुझे और जानना है. But she is someone you don't hear about a lot. Okay. I'm going to talk about Durga Bhabhi today. आओ तुम्हें कलयुग के महिषासुर की कथा सुनाऊं जो पहले मेहमान बन के आया था और फिर उसने अपना असली रंग दिखाया था. वो एक ना होकर कई रूपों का सौदागर था. ईस्ट इंडिया कंपनी बुलाता था खुद को. वो राक्षस तबाही पर उतारू था. इस बार भी उसे हराने एक वीरांगना आई. नरम मुस्कुराहट पे ना जाना उसकी, क्योंकि उसके पीछे थी उसने क्रांति की अग्नि छुपाई. साल है 1992. आप अपने स्कूल में क्लास अटेंड कर रहे हो और आपको हिस्ट्री सिखाने वाली टीचर खुद हिस्ट्री का हिस्सा रह चुकी है. हाउ कूल इज दैट. तो जो टीचर आपको मुर्गा बनाती है वो किसी वक्त बॉम्ब बनाती थी. एक कहानी दुर्गा की. दुर्गावती देवी की. एक वॉरियर, एक एजुकेटर और एक रेवोल्यूशनरी. The Agni of India, they used to call her. She's also known as Durga Bhabhi in movies.
Durga Bhabhi is the same character, of course, that Soha Ali Khan played in Rang De Basanti as well. I always wondered when Soha Ali Khan played that character कि I'm sure इस character ने और भी बहुत कुछ किया होगा contributing to the freedom of this country. And Soha Ali Khan did a great job playing this character, and I'm sure जिसने भी वो movie देखी है knows that she played a very big part. नहीं, बिल्कुल. उनका जन्म 7 अक्टूबर 1907 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था. उनकी माताजी की मृत्यु तभी हो गई थी जब उनकी उम्र बहुत छोटी थी. फिर उनके पिताजी ने संन्यास ले लिया और दुर्गा देवी जी को उनकी आंट ने पाला. जो पिता कभी दुर्गा को अपना संसार मानता था, उसने अपना संसार ही त्याग दिया. अकेली पड़ गई थी वो. तब चरण बाबू ने उसका साथ दिया. वो दोनों एक दूसरे की दूसरी मोहब्बत थे और इस बात से दोनों ही वाकिफ थे. पहली मोहब्बत अभी भी दिलों में पनपती थी. ये जान के भी वो प्यार बांटने को राजी थे. So basically इनकी शादी का सौतन कौन था? उनका वतन. उनकी पहली शादी तो देश से हो चुकी थी. मेरी दुल्हन तो आजादी है. बिल्कुल. राइट. दोनों ही बहुत बड़े देश प्रेमी थे. तभी तो जब गांधी जी ने स्टूडेंट्स से देश भर में गुहार लगाई कि वो कॉलेज छोड़ के क्रांति का हिस्सा बन जाए, तब लाहौर के नेशनल कॉलेज की एक चाय की टपरी पर बैठे कुछ यारों ने एक प्लान बनाया. एक बार भी नहीं सोचा और बन गए क्रांति का हिस्सा. कौन थे वो दोस्त? भगत सिंह, सुखदेव थापर, भगवती चरण वोरा और दुर्गावती चरण वोरा. Now imagine this, you're in college at that stage of your life जहाँ पे किसी भी चीज़ को seriously ना लेना is the norm. But then you take such a big decision and it's really big. मेरे रोंगटे खड़े हो गए बस ये सुन के. हमारी रियलिटी आज ये है कि हमारे सपने अलग हैं और उनके सपने अलग थे. It takes a lot of guts. देश को आगे बढ़ाना है तो पहले खुद से आगे देश को रखना पड़ेगा ना. गांधी जी की गुहार ने इन नौजवानों की नींद उड़ा रखी थी. सुध-बुध खो गए थे दीवाने. सपनों में इन्हें सिर्फ रोती हुई भारत माँ नजर आ रही थी. जब जब उनके आंसू पोंछने बढ़ते या आगे, वो ओझल हो जाती. नींद से जाग बैठते थे ये लोग. अपने सपने की हकीकत इन्हें नजर आती. तो क्या करते? उम्र का बहाना बना के जिम्मेदारी जाने देते. अपनी माँ के सूखे आंसुओं को इन्होंने मोती मान लिया. वीरता का श्रृंगार समझ इन्होंने माला बनाकर गले में उसे डाल दिया. तो इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन इन सबको पढ़ना शुरू किया. इन सब से इन्होंने इंस्पिरेशन ली एंड देन कुछ ऐसा हुआ जिसने दुर्गावती और उनके साथियों को जब जोड़ के रख दिया. करतार सिंह सराभा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद इंडिया आए थे, रेवोल्यूशनरी आइडिया स्प्रेड करने लगे हर जगह. जैसे कोई भी हमारे बाहर से, मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आई हूँ एंड ऑल दैट, बाहर से आते हैं एंड व्हाटएवर दे से इज राइट. तो वैसे ही आए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें अरेस्ट कर दिया एंड फाउंड हिम गिल्टी फॉर कंस्पायरिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर एंड सेंटेंस्ड हिम टू डेथ स्ट्रेट. हाउ ओल्ड वाज ही? गेस 19. जवानी का खून गर्म होता है, पर इस घड़ी खून में प्रचंड उबाल था. जानते नहीं थे करतार को वो, पर मानो उनके जिगरी के समान था. कॉलेज में फोटो स्थापित की उसकी. खादर का कपड़ा तब उसे उड़ाया. फूल चढ़ाने की जब बारी आई, तब दुर्गावती ने सबके हाथों में ब्लेड थमाया. श्रद्धांजलि देनी ही है तो खून की दो. करतार की रूह ने तब सबको झकझोर के जगाया. तो साल था 1928. देश भर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे थे. एक ऐसी ही प्रोटेस्ट को लाहौर में लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय. लाला जी दुर्गावती और उनके साथियों के गुरु थे, क्योंकि उन्होंने ही लाहौर की नेशनल कॉलेज को शुरू किया था. वही कॉलेज जहाँ इन सबकी दोस्ती हुई थी, वही टपरी वाला. सो इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जेम्स ए स्कॉट नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर ने लाठी चार्ज ऑर्डर किया था. इस अफरा तफरी में दुर्गावती जी भी मौजूद थी. उन्होंने अपनी आंखों के सामने लाला जी पर लाठियां बरसते हुए देखी और वो उनकी कोई मदद नहीं कर पाई. शी हेल्पलेसली सॉ हर ओन टीचर गेट मर्सिलेसली बीटन. आई कांट इवन इमेजिन दैट. लाठियों की बरसात के बावजूद नहीं लड़खड़ाए लाला के कदम. वो डटे रहे, वो खड़े रहे, पर अंग्रेजों ने नहीं दिखाया रखती भर का रहम. लाला के हिस्से की मार दुर्गावती ने भी खाई. बचा रही थी अपने गुरु की लाज वो. उनके मुंह से एक आ भी ना आई. हम ये सब बोल रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, पर ये उनकी रियल लाइफ में उनके साथ बीता है. इमेजिन व्हाट देयर मेंटल स्टेट वाज. फिजिकल तो छोड़ ही दो, फिजिकल तो उनको पता ही नहीं था कि रेस्ट क्या होती है, नींद क्या होती है. इट्स जस्ट माइंड बॉगलिंग. ऑफ कोर्स. 17 नवंबर 1928 को लाला जी का देहांत हो गया. ब्रिटिशर्स वर सो स्पाइनलेस दैट ऑफिशियली लाला जी की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया. उसके बाद गरम दल
दिस यंग फायरी ग्रुप ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, उनके लिए सब कुछ बदल गया. दे वर स्टूडेंट्स नो मोर, दे वर रेवोल्यूशनरीज. देश के काम ना आ सके जो, वो बेफजूल की जवानी थी. शुरू हुई तब गरम दल के नुमाइश आक्रोश की कहानी थी. तो गरम दल जानता था लाला जी की मौत का जवाब देना जरूरी है. सिंपल एज दैट. इसलिए उन्होंने स्कॉट को मारने की प्लानिंग की, पर उनका असैसिनेशन अटेम्प्ट फेल हो गया. उनकी मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से गरम दल ने स्कॉट के बजाय जेपी सॉन्डर्स पर गोली चला दी. पुलिस क्रांतिकारियों के पीछे पड़ी थी. ये गरम दल के लिए बड़ी ही नाजुक घड़ी थी. भगत और बाकियों को सही सलामत लाहौर पहुंचाना था. पकड़े ना जाए ऐसा कुछ करके दिखाना था. उन्होंने फिर एक परिवार होने का ढोंग रचाया. भगत को भूषण, खुद को उसकी पत्नी बताकर उन्होंने शातिर एक खेल रचाया. So we've seen it in the movies, we've seen it everywhere, but she was the one जिन्होंने एंग्लो-इंडियन डिस्गाइज का आइडिया दिया था भगत सिंह को. कहते हैं कि the disguise was so effective कि उनके पति भगवती चरण भी भगत सिंह को नहीं पहचान पाए. बात सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं थी. उस वक्त दुर्गावती के पास जितनी कुछ जमा पूंजी थी वो सब उन्होंने भगत सिंह को दे दी. इसी तरकीब के बदौलत भगत और उनकी टोली लाहौर से कलकत्ता पहुंची. सो एट दिस पॉइंट ब्रिटिशर्स के लिए गरम दल उनके रास्ते का कांटा बन चुका था. दुर्गावती अब पिक्रिक एसिड और मेटल कास्टिंग्स की मदद से घरेलू एक्सप्लोजिव्स बनाने में एक्सपर्ट हो गई थी. इट इज सो अमेजिंग. आई लव इट दैट इट्स अ गर्ल हु इज डूइंग इट. यू नो कि एक लड़की ये सब कर पा रही है. I can't get over the choice of words only that you have put कि घरेलू explosives. घर में ये explosives बन रहे हैं and there's this woman who's in her somewhere in the kitchen or maybe outside the kitchen instead of the quintessential black and white image of. तो घर पे मास्टर शेफ बोलते हैं ना, होम कुक बोलते हैं, तो होम कुक्ड एक्सप्लोजिव्स, घरेलू एक्सप्लोजिव्स वही तो है. Yes. पर इसलिए बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस दैट वाज हैपनिंग, ब्रिटिशर्स ने गरम दल के बॉम्ब बनाने वाले कारखानों पर रेड्स मारना शुरू कर दिया बिकॉज दे गॉट स्कैर्ड. पर इस दौरान भी दुर्गावती और चरण बाबू बचते रहे, छुपते रहे और क्रांति का काम करते रहे. क्रांति का समंदर अब उफान पर था. गरम दल का मंसूबा अब चट्टान सा था. ब्रिटिशर्स को एक पैगाम पहुंचाना था. पूरे देश में जिसके झटके महसूस हो ऐसा कुछ धमाकेदार कर दिखाना था. दुर्गावती भगवती चरण ने भगत सिंह और भुक्तेश्वर दत्त की मदद की ताकि वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बॉम्ब फोड़ पाए. सिंपल. द मोटिव ऑफ दिस एक्ट फ्रॉम द गेट गो वाज नॉट टू हार्म एनीबडी एट ऑल. ये बॉम्ब भी इसी तरह बनाया गया था कि जिससे शोर हो थोड़ा सा और धुआं हो थोड़ा सा, बस. While this attack happened, दुर्गावती और भगवती चरण बाहर टांगे पर भगत सिंह का इंतजार कर रहे थे. तो वो उनका इंतजार कर रहे थे ताकि वो उनके साथ भाग सके. पर भगत सिंह एंड बीके दत्त continued standing in the assembly and shouting इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद. For both of them, the idea was that they wanted them to get arrested so that the message that they goes wanted to out put there. out can go through the press and through everybody, through the entire nation. Yeah. Their ideologies, their thoughts can reach more people. Yeah. And they chose to sacrifice themselves. Like इतनी easily how can you do that? It's just it's mind boggling. जब ये डेडली मिशन हो रहा था दुर्गावती की गोद में, तब भी उनका बच्चा था जो जब भगत सिंह को पुलिस के द्वारा एस्कॉर्ट किया जा रहा था, दुर्गावती at that point of time had to stop him and run away from there. Of course. इसी इंसिडेंट के बाद भगत सिंह was arrested. तो व्हाट शी यूज्ड टू डू, वो अलग अलग भेस में जाती थी उनको जेल में मिलने. उन्हें बाहर हो रही रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में इन्फॉर्म करती रहती थी, कि लेटर्स देती रहती थी कि ये सब हो रहा है, डोंट वरी, हम वी आर कीपिंग द फोर्ट अलाइव. Chandrasekhar Azad used to be called a Behrupia. Yes. Used to be called a Behrupia. But I think the female Behrupia, so to speak, was Durga Bhabi. Yeah, Durga Bhabi. जतिन दास उनका एक और दोस्त था जिसने 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद दम तोड़ दिया. पर उनकी मौत ने दुर्गा में और दम जोड़ दिया. उन्होंने उनके पार्थिव शरीर को लाहौर से कलकत्ता पहुंचाया बिना पुलिस की परवाह किए. उन्होंने जतिन को अपने परिवार से मिलाया. तो दुर्गावती और चरण अब गरम दल की लीडरशिप संभालने लगे. पर थिंग्स वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स फ्रॉम हियर. 1930 के मई महीने में रावी नदी के किनारे एक बॉम्ब टेस्ट करते हुए चरण बाबू की मौत हो गई. दुर्गा अकेली हो गई, पर लड़ाई अभी बाकी थी. वतन की मोहब्बत और दोस्ती दोनों की आजमाइश होनी काफ़ी थी. भगत को बाहर निकालना दुर्गा ने अपना मकसद बना लिया. पर 7 अक्टूबर 1930 में अंग्रेजी कोर्ट ने उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी. 7 अक्टूबर दुर्गा जी का बर्थडे भी है. इट्स पोएटिक बट नॉट पोएटिक जस्टिस कि दैट सेम डे हर बेस्ट फ्रेंड वाज सेंटेंस्ड टू डेथ.
तो दुर्गावती ने पुरजोर कोशिश की भगत सिंह को और उनके साथियों को बचाने की, पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। मार्च 23 को सुखदेव राजगुरु और भगत को फांसी की सजा सुनाई। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन ब्रिटिशर्स मेड लाइफ लिविंग हेल फॉर करमदल। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके घर जब्त कर लिए थे, उनके दोस्तों को सूली पर चढ़ाया था, पर उमड़ रही थी अभी भी बदले की आग। इसलिए उन्होंने भगत सिंह के स्टाइल से एक और प्लान बनाया था। फिर दुर्गावती जी बॉम्बे पहुंची भगत और उनके साथियों की फांसी का बदला लेने। एक आदमी के भेष में दुर्गावती ने सार्जेंट टेलर और उनकी बीवी पर गोली चला दी। कैन यू इमेजिन? दुर्गा भाभी वहां से फरार हो गई और उसके बाद उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की मदद करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट द अदर थिंग टू दिस इज कि ये जो शूट आउट हुआ ये लैमिंगटन रोड पे हुआ, एंड लैमिंगटन रोड फॉर एनीबडी हु इज लाइक फ्रॉम बॉम्बे और हु इज नॉट फ्रॉम बॉम्बे इज लाइक वेरी क्लोज टू वेयर वी आर फ्रॉम नाउ। एंड वहाँ पे पहले पूरा सी फेस दिखता था मुंबई का, और ये वहाँ हुआ। So this was happening in a moving taxi से shoot किया सार्जेंट टेलर को। When the Britishers traced back the taxi driver and after a lot of interrogation, उन्होंने जब उनसे पूछा कि कौन था गाड़ी में, तो they did not believe when the taxi driver said that it was actually a woman dressed like a man. They were like, no, you're trying to like say the wrong thing. Tell us who was it? Said, no, वो सच में एक आदमी गुजराती lady थी who was dressed like a man. That's what the taxi driver told them. वाह, इंस्पायरिंग। उसके बाद उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की मदद करना शुरू कर दिया, पर कुछ समय बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। 1932 के सितंबर महीने में पुलिस ने उन्हें लाहौर में गिरफ्तार कर लिया, पर पुख्ता सबूत ना होने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। जेल के डर से भी दुर्गा भाभी ने क्रांति की राह नहीं छोड़ी। खराब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने राजनीति से शिक्षा की ओर अपनी गाड़ी मोड़ी। लखनऊ में उन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। आज़ादी का सपना सच होते हुए देखा तो, पर 15 अगस्त 1947 की रात उनका दिल खूब रो उठा। काश इस पल को वो अपने पति, अपने दोस्तों के साथ जी पाती। काश दीवानों की ये टोली आज़ाद भारत में दोस्ती के कुछ पल साथ बिता पाती। इंडिपेंडेंस के बाद शी लिव्ड अ क्वाइट लाइफ इन एनोनिमिटी, एंड 1999 में एट द एज ऑफ 92 वी लॉस्ट। 200 साल, अनगिनत बलिदान और भुलाए जा चुके ना जाने कितने नाम, इतिहास में अमर होने की लालसा न थी। ऐसे थे इनके निस्वार्थ काम। आज के भारत की किस्मत खोली जिसने, ऐसी थी वो चाबी, फौलादी इनकलाबी। ऐसी थी हमारी दुर्गा भाभी। Wow. Yeah. Thank you. What a powerful woman. Yeah, and it just feels so nice that she got to live so much of the freedom that she fought for, because she lived Yeah. till she was 92. You said she passed in 1999, Yeah. which is like now. Yeah. She got to live so much of it, and she got to see a free world, and she got to see technology and where we are now. Imagine आज की technology और आज की चीज़ें उनको दी जाती तो वो क्या कर जाते हैं? Does telling of this story inspire you? It does. Just researching on it, Yeah, of and course. also just reading more about it, and just seeing what all she did. It was not like she gave up. She could have chosen the easy route, शादी Yeah. करके बच्चा भी था। जब अंदर बॉम्ब फूट रहे थे जो उन्होंने बनाए थे, बाहर बच्चे को लेके बैठे थे वो। You know, it's mind-boggling. Why do you think we don't know any of this? Why don't we talk about any of this? Everything that we talk about right now is only what media or social media, gives us. The algorithm feeds Algorithm. us. अगर हम चाहकर भी उस algorithm से बाहर नहीं निकल सकते. Like there are so many points in my day that I tell myself ये मेरा काम नहीं है. मेरा काम नहीं है कि मैं शूट सेटअप करूँ before I go to an award function or I go to an interview, कि my look of the day का professionally shot photos will go on the gram. Correct. This is not my job, but now they have made it No, that is your job. our job. ये इतना insignificant रखता है when we see all of these other things that these people were doing and the lives they were living. तो और मन करता है कुछ अच्छा करने का, because इन्होंने बहुत sacrifices दी हमारे लिए. How do you think we can make sure that more people इसके बारे में बात करें या जाने? I think हमें ही बात करनी पड़ेगी. ये जो इनिशिएटिव आपने लिया है कि ये चीज़
उनको easily accessible हो with a click of a button, and that's the only way you can आप किसी को कोई चीज़ आज के ज़माने में पहुँचा सकते हो. जी. I remember for my history exam in my 9th और 10th grade जब रंग दे बसंती रिलीज हुई थी, मैंने एक रात मैंने पढ़ा ही नहीं भगत सिंह का चैप्टर, मैंने पिक्चर देखी and I wrote and I could say the story because we grew up in that माहौल. अभी वो माहौल ही नहीं बचा. अभी सिर्फ वो एक तुम्हारी जो तिरंगे के साथ फोटो है तुम वो डाल दोगे 26 जनवरी 15 अगस्त को वो एक फोटो तुम निकाल के डालोगे और बस that's it. That is the patriotism that is there right now. You know, I think as artists or as people who work in the creative fields, we have a big responsibility. The fact that you and I have this mic and there are these cameras shooting us and we have all this at our disposal, and the people who follow you, who like your work, hopefully they will see it. Yeah. 1% of them Yeah. might hopefully talk about Yeah. it. That's what we aim for, right? कि मैं जो कर रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ, whatever I'm trying to express, whatever I'm trying to show, by example. Yeah. You know, you can only do it by example. There's no other way. I think the word influence is used very easily nowadays. Yeah. असली influencers तो ये थे. Exactly. All of them were influencers. They influenced the bloody nation. Exactly. Now imagine They were the real influencers. Imagine Bhagat Singh had a social media account today. Exactly, that's what I'm saying. Like if like तभी guys, Bhagat hi Singh guys, होते. making bombs at home. you know? If Gandhi ji had a social media account back in the day, Yeah. like कितने followers होते उनके? बिना ये सब के कितने Right? followers थे? Messaging कितनी आसान हो जाती वर्ल्ड में. It was just the determination that counts. Even today that counts. भले कितने भी followers हो आपके, जी. आपका determination, आपका काम, आपका intent क्या है, तो ही आपको लोग follow करेंगे. I don't think anything else matters. Superb. Thank you. Really, really happy you did this. My last bit to you is to, how do you feel? I feel good. When I was researching it, I think मैंने बहुत आंसू खर्च किए इसके end पे. It's someone's real life. You know, ये तो stories हम बोल रहे हैं, किसी की real जिंदगी है. So I'm just happy I'm putting it out there. Yeah. And मेरे ज़रिए ये बात बाहर जा रही है, and I hope मेरे ज़रिए और लोगों तक पहुँचे. Yeah. Thank you. That's all I can hope. Thank you so much for coming. I would like you all to care, share, like, and subscribe. Thank you. Thank you so much for Thank coming. you, Nishchay. Thank you. याद रख, तू आम नहीं तू अग्नि है. तेरी किस्मत दूसरों से नहीं तुझसे ही बननी है. अपने और अपनों के लिए हर अंधेरे से लड़ जाना तू, क्योंकि तेरी रोशनी से ही तेरी राह चमकनी है. याद रख, तू आम नहीं तू अग्नि है.